اپنے اگر سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں الیکشن پروسیسز میں ان کا کوئی تنقید ہے تو ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم الیکشن پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جو سیاسی جماعتوں کا پارٹیسپنٹس کا لوگوں کا عوام کا اعتراض ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم ایک پوائنٹ ایجنڈا جس پہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے. اس پہ اگر وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کمیٹیز میں واپس آ سکتے ہیں, تو شاید ممکن ہو کہ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کا منصوبہ تو ایسے کام کیا جائے کہ ہم اتفاقی رائے سے اپوزیشن کے ممبرز سے, حکومت کے ممبرز سے کوئی اتفاقی رائے پیدا کی جائے, اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں, ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات, ہم نہیں چاہتے کہ ایسے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے, ہم اپنا شکست خوشی سے تسلیم کرنے کے لیے تھے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں, اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے, اتنا کم پاپولیشن کا تعداد اتنے سارے فیزز میں, اتحادیوں کے درمیان الیکشنز ہو رہے ہیں, وہاں بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا with the leaders of the opposition rather than any specific political party, یہ ایک اچھا آغاز تھا. کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کمیونیکیشن گیپ دور ہو گیا, ہمارا کمیونیکیشن کا ہو سکتا ہے. اور اس قسم کے جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیز مل کے بات کریں. اس سے جو اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا آئٹم اس وقت اس میٹنگ کے مطابق بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے, بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہے. حقیقت کیا پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, آپ کا کیا اسٹانس ہے ان دونوں تینوں چیزوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے, ان تمام ایشوز میں. آج تک کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے, حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا. سلسلہ جب چلا کس نے آپ کو بتایا؟ میں نے بتایا نا. 27th امینڈمنٹ ہوا, کس نے آپ کو بتایا؟ کیا حکومت نے بتایا؟ پیپلز پارٹی دیکھو میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے سامنے تو ابھی تک ایسی کوئی بات میرے ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی, الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں, الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے, بار بار دیا ہے, ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے, اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا, عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں, نہ آج مانیں گے, نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن
वहाँ लड़ के हक में हक मलकियत और हक रोज़गार के मंशूर पे लड़ के आया हूँ। अब जो जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने एक कंसेंसस पहले से मौजूद है। उसके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसमें किरदार था वो आपके सामने है। आज अगर वो कंसेंसस मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस के साथ खड़ी है। अगर आज वो कंसेंसस मौजूद नहीं है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं पंजाब के खिलाफ कोई साजिश कर सकूँ। वैसे ही हर सूबा का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो सिंध का मौक़िफ़ है आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अवाम के रज़ामंदी से, अवाम के इनपुट से और इत्तेफ़ाक़ राय से जो मुमकिन है वो हो सके। जहाँ इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है, जो इत्तेफ़ाक़ राय सियासी जमातें अगर पैदा करना चाहते हैं वो कोशिश भले करें। मैं उनको ना रोक सकता हूँ ना रोकना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी था। एक सवाल नवीद भाई, इजाज़ भाई आप कर लें, आप भी जाते हैं। अपोजिशन लीडर से आपकी मुलाकात को 2.5 साल तकरीबन हो गया और कहा यह जा रहा है कि इस पार्लियामान को चूंकि खतरा है इसलिए ये मुलाकात भी मुमकिन हुई। एक तो ये बताइए कि पार्लियामान को क्या खतरात हैं, किससे खतरात हैं और क्या बात ग्रैंड नेशनल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकती है? जहाँ तक पार्लियामान को ख़तरा है, वो पार्लियामान को तो बहुत से ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें से ये ख़तरा है कि जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो पार्लियामान का वो कदर ना करे, वो पार्लियामान को उस तरीके से चलाए ना, और उस सोच के मुताबिक बाहर के ख़तरे तो अपनी जगह। मैं तो जो अंदरूनी मसले हैं हमारे अपने पार्लियामान को, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से एक मेरा ख्याल में ये जो ऑपोजिशन जमातों का फ़ैसला है कि वो पार्लियामान के प्रोसेस से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं, अगर वो भी दुरुस्त हो जाए वो एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक आपके दूसरे बातें उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। ऑपोजिशन लीडर्स के साथ देखा तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई का अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फ़ाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का
हम तब्दीली ये बता दें कि आप इलेक्शन में 5 ऐसे हल्के हैं जो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती हुई थी 5 हल्कों में। प्लीज एक्सक्यूज मी, आज़ाद कश्मीर के 5 ऐसे हल्के हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट चेंज किया गया या मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी। तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ है, 400 वोटों से कर्नल 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं। सेम बाकी हल्कों में भी इस वक्त हालत, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से रिलेटेड इसको मुकम्मल करो अदरवाइज सब इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है, क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे अवाम का इंतखाब किया जा सकता है और वो लीगल होगा? देखो ये आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना हसास अहम जगह है, इलाका है, 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली जितना ही मुतनाज़ा बना सके हमने बना दिया। आपने जिक्र किया वो सीटें जो आप कह रहे हैं, आप जो आपने ख़ुद कवर किए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गई। आपने भिम्बर का परवेज़ अशरफ का हल्का का जो 800 वोट का जो इशू है उसको हाईलाइट किया। मीरपुर में चौधरी इखलाक का, जावेद भटवानवी का, अगर मुझे मैं भूल चौधरी यासीन का, वो तो फिर दूसरा फेज़ में मज़े का बात ये कि हमने तो अपने एतराज़ात उनको बताए थे कि हमें शक है कि यहाँ इन हलकों में वायलेंस होगा, सिक्योरिटी फराहम किया जाए, यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा होंगे। वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुजफ्फराबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो MNAs वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ MNAs ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगे। मेरे कारकुन को मीरपुर के फेज़ में और मीरपुर ख़ास के फेज़ में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए। फिर आप आए भाग के इलेक्शन, पूंछ का फेज़ में ये था कि तब भी मीरपुर में धांधली करके, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में धांधली करके, फिर भी मुमकिन था कि अगर पूंछ डिवीज़न का पूरा इलेक्शन एक साथ होता कि किसी और का हुकूमत, पीपल्स पार्टी का हुकूमत AJK में बन जाता। वो तो फिर 3 के बजाय 6 फेजेस हो गए। और फिर हम आ जाते हैं आपके आखिरी पॉइंट कि वो 6 फेजेस भी मुकम्मल नहीं और इलेक्शन हो गया, मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना ज़ोर से और इतना शौक़ से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे, और बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक ऐसा पार्लियामान आ जाता जिसका मैंडेट होता, जिसका लेजिटिमेसी से होता कि वो कश्मीर के ये इश्यूज़ को, अंदरूनी इश्यूज़ को, एंडेमिक इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमेशा के लिए एड्रेस करें। वो मौका तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करें। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या आप वो बात छोड़े जो आप गिन ले
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को मुंतखब करने से पहले इनके साथ तय किए थे आपस में सियासी मुआहदे, जो हम हर बजट में इनके साथ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सूबों के लिए इश्यूज उठाएं, क्या वो उनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं? तो फिर ये जायज़ है कि मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए, हमारे इश्यूज़ को, जायज़ इश्यूज़ जो आपने ख़ुद उठाए हैं उनको कोई अगर ये दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हम इस मूड में हैं कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने मेरा पार्लियामेंट्री पार्टी से ऐसे राब्ता किया, ऐसे तावन किया, ऐसे कोशिश किया कि कोई एतराज़ात दूर किया जाए। I'll come to you later. कश्मीर के हवाले से सर लेफ्ट राइट को छोड़ के सामने वाली रो से सवाल बनता है सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने इनको गिलगित दे दिया, तो क्या वो एहसान जता रही है? और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जब हार जाती है तो धांधली का रोना रोती है, और अभी पीपल्स पार्टी यही कर रही है। कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है,